So, good morning all and welcome to the day 8 of our video lecture series of C++. In last video lecture, we have seen the concept of functions. That is, what is function, what are the different types of functions. Now in this particular video lecture, we are going to see the concept of arrays. Now as you know that if I want to process, समझो मेरे पास एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है, सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ए बी सी एंड प्रोसेस द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स. अगर 3 ही सब्जेक्ट है तो आप डिफरेंट वेरिएबल्स ले सकते हो, बट इफ यू हैव 32 marks of 32 subjects, then instead of using 32 different variables, it is possible to use a single variable to store values of 32 marks. Each values are different, but these values are combined together by using array. So what is array? Array in C++ language is a collection or group of elements. All the elements of array are homogeneous. Homogeneous means what? Similar. So my definition of array is a collection of elements which are having same data type. अगर एक इंटीजर है और मैं 10 एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा हूं तो 10 के 10 जो है वो इंटीजर ही होने चाहिए. अगर पहला फ्लोट है और मेरे पास 12 एलिमेंट है तो इट इज नेसेसरी दैट ऑल दीज 12 शुड बी फ्लोट. तो पहला अगर फ्लोट है तो बाकी सब फ्लोट, पहला अगर इंटीजर है तो बाकी सब इंटीजर. सो व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर हैविंग सेम डेटा टाइप. अगर एक ही डेटा टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट मैं एक जगह पे बाइंड कर सकता हूं, सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एरे. नाउ जैसे कि if I want to store a value of variable a into memory, then 2 bytes are required. This is an individual variable. Now if I want to store 10 integer values by using array, then normally these values are stored on consecutive memory locations. Means मेरे पास अगर एक कैरेक्टर है तो उसको एक ही बाइट लगेगा. Just assume that array is stored on byte number suppose 1000. Now if there is an array of 5 characters, then these 5 characters are stored on consecutive memory locations. Means पहला अगर 1000 बाइट नंबर पे स्टोर है तो आखिरी का कहाँ पे स्टोर होगा? तो इट विल बी स्टोर्ड ऑन मेमोरी लोकेशन 1004. Means 1000, 1001, 1002, 1003 and 1004. So fifth element is stored on memory location 1004. This is general concept of array. Now how to declare array? Actually there are different types of arrays, लेकिन एक जनरल array अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो किस तरह से करना पड़ेगा? तो उसके 3 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू मेंशन द डेटा टाइप ऑफ array. Then you have to write name of array, means this is your variable name, and in square brackets you have to mention the size, that how many elements I want to process by using this variable. ये वेरिएबल यूज करके मैं कितने एलिमेंट प्रोसेस करना चाहता हूँ वो ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. देखो सी में बहुत सारी चीजें हैं. एक करली ब्रेस है, पैरेंथेसिस है C++ में. अब ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट. सो द वैल्यू विच इज स्टोर्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज साइज ऑफ दैट एरे. एंड साइज मीन्स व्हाट? हाउ मेनी एलिमेंट्स आई वांट टू प्रोसेस. कितने एलिमेंट मुझे प्रोसेस करने हैं वो कहाँ पे लिखूंगा मैं? साइज में. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो क्या है एग्जांपल? इंटीजर मार्क्स ऑफ 7. इसको ऑफ बोलते हैं. So what is meaning of integer marks of 7? So marks is a variable, but as there is something new
with this variable, this 7 is called as size of array marks. So what is capacity of marks? Capacity of marks is to store 7 integer values. कितने इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है मार्क्स? 7 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है. अब आगे चल के हम वो भी देखेंगे दैट टू स्टोर 1 इंटीजर it requires 2 bytes. So to store 7 integers, it requires 7 bytes. 14 bytes. Now how array is stored? This is just the introduction. आगे हम डिटेल में भी लेने वाले हैं. Starting from a given memory location, the successive array elements are allocated space in consecutive memory locations. Means स्टार्टिंग का एड्रेस मीन्स पहले एलिमेंट का एड्रेस अगर मुझे मालूम है तो दूसरा एलिमेंट डेफिनेटली पहले एलिमेंट के बाद ही स्टोर हुआ होगा. एग्जांपल दिया है यहाँ पे इंटीजर ए ऑफ 7. ये हो गए उनके इंडेक्सेस. इंडेक्सेस मीन्स इफ आई वांट टू प्रोसेस दिस एलिमेंट आई हैव टू यूज ए ऑफ 2. सो दीज आर कॉल्ड, आगे देखने वाले हैं हम इंडेक्स में. जस्ट अगर पहला एलिमेंट 1000 पे स्टोर है, किसका? ए ऑफ 7 का, तो डेफिनेटली सेकंड एलिमेंट इज स्टोर्ड ऑन मेमोरी लोकेशन 1002. मीन्स व्हाट? इंटीजर डेटा टाइप है तो हर एक एलिमेंट को मुझे कितने बाइट लगने वाले हैं? 2 बाइट. इफ देयर आर 7 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी बाइट्स आर रिजर्व्ड इन मेमोरी टू स्टोर ए? 14 बाइट्स. तो इसमें अगर पहला बाइट 1000 पे स्टोर है तो दूसरा पहला एलिमेंट अगर 1000 पे स्टोर है तो डेफिनेटली सेकंड एलिमेंट विल बी स्टोर्ड ऑन मेमोरी लोकेशन 1002, थर्ड एलिमेंट 1004. इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाइट नंबर 1000 एंड 1001 these 2 bytes are reserved to store a of 0, that is nothing but first element of array. Byte number 1002 and 1003 is used to store a of 1. Byte number 1004 and 1005, these two are used to store a of 2. Likewise, byte number 1012 and 1013, these 2 bytes are used to store a of 6. अब देखो a of 7 है मीन्स कितने बाइट लग रहे हैं? 14. तो 14 बाइट आ गए क्या? देखो 1000 से लेके 1013 तक. तो 1000 को अगर मैं पहला बाइट कहता हूं तो डेफिनेटली 1013 इज अ 14th बाइट इन दिस सीक्वेंस. सो लाइक दिस array is stored in memory. Now next thing is array variable is also called as subscripted variable. Subscripted, ये बात ध्यान में रखो. Sometimes what will happen that in your examination question is asked that what do you mean by subscripted variable. तो लिखना क्या है? array ही लिखना है. Means if I declare integer a of 10, तो ये तो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है. अगर हमें इंटीजर b डिक्लेयर करता हूं और सेमीकोलन देता हूं तो whether this b is a subscripted variable? No, it is a simple variable. But as a is declared as a of 10, then this a is called as subscripted variable. And what is 10? 10 is called as subscript of a. a का सबस्क्रिप्ट क्या है? 10 है. कितने सबस्क्रिप्ट है? एक ही है और वो सबस्क्रिप्ट की वैल्यू कितनी है? 10 है. So this a is also called as subscripted variable, and in normal words it is called as array. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे. इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं. 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, या 1 डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है. मल्टी डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल एरे भी आता है. लेकिन हमें सीखने कौन से है? 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल. नाउ एज वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, ये पढ़ने की वजह से क्या होगा, अब हमें ये डेफिनेशंस इजी जाएंगे. कैसे? दैट इफ देयर इज ओनली वन सबस्क्रिप्ट फॉर अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल n,
then n is called as one dimensional array, integer n of 10. तो n क्या हो गया? It is a one dimensional array. Now what is two dimensional array? If there are two subscripts for a subscripted variable n, then n is called as two dimensional array. यहाँ पे हमने b array डिक्लेयर किया है और क्या लिखा है यहाँ पे? एक स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में 3 लिखा है और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में दूसरा 3 लिखा है. So how many subscripts are there? Two subscripts are there. So it is called as two dimensional array. इसी तरह से अगर 3 subscripts है तो that particular array is called as 3 dimensional array. लेकिन हमें दो ही सीखने हैं. वन इज वन डायमेंशनल, अनदर वन इज टू डायमेंशनल. कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुक्स में ऐसे दिया गया है कि if there is only one subscript then one dimensional, and if there are more than one subscript then it is called as multi-dimensional array. That definition is also correct. वो भी डेफिनेशन एकदम करेक्ट है. नाउ यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल एरे इन मेमोरी. अगर आपके पास एक एरे है n of 6 और उसकी डेटा टाइप इंटीजर है तो 3 पार्ट है. ये मेरा एक्चुअल एरे है विच कंटेन्स वैल्यूज. लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पार्ट है, this represent memory locations on which these array elements are stored. तो पहले तो सेंटर का वैल्यूज है. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड में है मेमोरी लोकेशंस ऑन विच दीज एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड. एंड इधर जो लिखा है दीज आर कॉल्ड एज इंडेक्स वैल्यूज. एंड दीज इंडेक्स वैल्यूज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल while you process the array. जब मैं एरे को प्रोसेस करूंगा तब ये इंडेक्स वैल्यूज बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं. क्यों? तो देखो, इफ आई वांट टू ऐड 4 इनटू ओनली दिस एलिमेंट, खाली एक ही एलिमेंट में मुझे 4 ऐड करने हैं, बाकी सब एज इट इज रखने हैं, देन आई हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट n of 3 इज इक्वल टू n of, सॉरी यहाँ पे a आ गया है तो हम ये एरे का नाम भी a ही ले लेते हैं. और यहाँ पे भी कंसिडर करो कि दिस इज a of 3 इज इक्वल टू a of 3 प्लस 4. क्या होगा? तो a of 3 में जो वैल्यू है 56, नाउ दिस वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 4, सो दिस वैल्यू बिकम्स 60. लेकिन डायरेक्ट प्रोसेस कर सकता हूं क्या? नहीं, पॉइंटर से वगैरह प्रोसेस कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी. किसकी? इंडेक्स वैल्यू की. और C++ में फॉर एवरी एरे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इज 0, देयरफॉर लास्ट इंडेक्स वैल्यू इज 5. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 6. मेमोरी लोकेशन तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर पहला एलिमेंट 1000 पे स्टोर है, डेटा टाइप अगर इंटीजर है, तो सेकंड एलिमेंट डेफिनेटली स्टोर्ड ऑन 1002, देन 1004, मींस लास्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड ऑन मेमोरी लोकेशन 1010 एंड 1011. क्योंकि एक इंटीजर को 2 बाइट लगते हैं. ये जो 1002, 1002, 1004, 1006 ये जो है इट रिप्रेजेंट फर्स्ट बाइट, और इंटीजर को 2 बाइट लगते हैं. तो पहला बाइट अगर 1000 है तो सेकंड बाइट जो रिजर्व किया होगा दैट बाइट इज 1001. सो 1000 से लेके 1011 तक टोटल नंबर ऑफ बाइट्स विच आर रिजर्व टू स्टोर a of 6 आर 12 बाइट्स. तो 1000, 1001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को 12वां बाइट आ गया. ठीक है. सो दीज आर द इंडेक्स वैल्यूज, मेमोरी लोकेशंस एंड एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एरे. Now, how two-dimensional array is represented in memory? If you have gone through data structures, तो डेटा स्ट्रक्चर में हमें बताया गया है कि वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी. सॉरी, टू डायमेंशनल एरे is represented in memory by using 2 different ways. One is by using row measure order, another by using column measure order. But many operating systems follow row measure order. Row measure means what? देखिए,
टू डायमेंशनल अरे पढ़ते वक्त अगर आपने सी में भी देखा होगा तो कुछ इस तरह की फिगर हम निकालते हैं कि दिस इज नॉट टू डायमेंशनल अरे। यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज 0 0, 2 डायमेंशन है बोले तो 2 सबस्क्रिप्ट है हर एक एलिमेंट को। दिस इज 0 1, सॉरी दिस वन इज 0 1, दिस वन इज 0 2। Likewise, this last element is 2, 2. So 0 0 0 1 0 2, 0 1 1 0 1 2, 0 0 0 1 0 2, 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2. So first index represent row, second index represent column. तो अगर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है तो मेरे जो ये जो एलिमेंट है इनका सीक्वेंस क्या होगा, तो पहले 12, देन 15, देन 34, देन 56, 54, 34, 12, 34, 45 लाइक दिस। अब दूसरा है कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। कॉलम मेजर में क्या होता है देखो, इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, मीन्स व्हाट, 0 0 1 0 2 0, 0 1 1 1 2 1, 0 2 1 2 2 2। अब ये सीक्वेंस कैसे होगा फिर, 12 56 12, 15 54 34, 34 34 45। But in many of the operating systems, arrays are stored by using row measure order only. So in C++ also these arrays are stored by using रो मेजर ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे भी देखो आप ए ऑफ 3 3 लिखा है लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो 2 है। तो ये 2 ही क्यों है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट, 3, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर प्रेजेंट इन ईच रो, अगेन 3। तो ये हो गए 1 2 3 रो और ये हो गए कॉलम। ईच रो में कितने कॉलम है, तो 1 2 and 3। सो इफ आई वांट टू प्रोसेस 2 डायमेंशनल एरे, नॉर्मली दिस 2 डायमेंशनल एरेज आर यूज्ड इन मैट्रिक्स मैनिपुलेशन प्रोग्राम्स। नॉर्मली ये कहाँ यूज होते हैं, तो ये यूज होते हैं मैट्रिक्स मैनिपुलेशन प्रोग्राम्स में। नाउ हियर इज द एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। दोनों भी एग्जांपल देखेंगे हम, हो सके तो C++ में रन भी करके देखेंगे टाइप करके। यहाँ पे खाली देख लो क्या क्या किया है। प्रोग्राम क्या है कि प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग गिवन 10 एलिमेंट्स इन एरे, मीन्स पहले क्या करना है, हमें 10 एलिमेंट देने हैं और 10 एलिमेंट देने के बाद मुझे ये 10 एलिमेंट में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है वो प्रिंट करनी है। क्या क्या किया है प्रोग्राम में, ये तो इंक्लूड्स है प्री प्रोसेसर, देन मेन फंक्शन। यहाँ पे मैंने 10 एलिमेंट का एरे डिक्लेयर किया, मैक्स नाम का एक वेरिएबल लिया विच इज यूज टू कैरी आउट लार्जेस्ट अमंग 10 नंबर्स, एंड आई इज यूज्ड। अब ये आई क्यों यूज करना है, क्योंकि मुझे ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, अब यहाँ पे रेंज कितनी है या सबस्क्रिप्ट कितनी है, 10 है। तो डेफिनेटली मेरे एरे एलिमेंट ए ऑफ 0 से लेके ए ऑफ 9 तक स्टोर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लिखा, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। एज यू नो फर्स्ट वैल्यू इज 0 एंड लास्ट वैल्यू इज 9, वही चाहिए मुझे। सो 10 टाइम्स दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन यहाँ पे मैंने i लिया है और i की वैल्यू 0 से लेके 9 तक जा रही है। इट मीन्स दैट आई एम रीडिंग C in a of 0, then a of 1, then a of 2 like this up to a of 9। तो मैंने पहले 10 वैल्यूज दे दिए। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 0, मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ 0। तो पहली जो वैल्यू है 2, जस्ट एज्यूम दैट दीज आर द वैल्यूज विच आर गिवन। तो मैक्स की वैल्यू इनिशियली क्या हो गई, 2 हो गई। उसके बाद मैंने एक दूसरा फॉर लूप लिया है यहां से यहां तक, और वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, क्योंकि हमने पहली वैल्यू तो मैक्स में ले ली है, तो दूसरी वैल्यू कंपेयर करनी है मुझे।
और ये लूप कितने बार वो एग्जीक्यूट होगा, दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 9 टाइम्स। क्या लिखा है मैंने, इफ ए ऑफ 1, पहले वैल्यू क्या हो गया है कि 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 9, यस, इफ यस देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक। यहां पे मैंने क्या लिखा है, इफ ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 4 है। सो वेदर दिस 4 इज ग्रेटर देन 2, यस, इफ यस देन मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई, मीन्स ये 2 निकाल दो, उसकी जगह पे 4 ले लो। हियर योर फॉर लूप एंड्स, मीन्स वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब ये पहले 1 थी, अब क्या हो गई 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9, यस, अगेन इफ ए ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मैक्स, ए ऑफ 2 क्या है 56, 56 इज ग्रेटर देन 4, यस, तो यहाँ पे आएगा 56, मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई। मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई कब होगा, व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी 3, वेदर ए ऑफ 3 इज ग्रेटर देन मैक्स, ए ऑफ 3 मीन्स व्हाट 76, 76 इज ग्रेटर देन 56, यस, सो यहाँ पे 76 आ जाएगा। वेदर ए ऑफ 4 इज ग्रेटर देन मैक्स, ए ऑफ 4 क्या है 112, 76 भी निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या आएगा 112। वेदर ए ऑफ 5 इज ग्रेटर देन मैक्स, 0 1 2 3 4 5, सो वेदर ए ऑफ 5 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो ए ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 65 है, और यहाँ पे मेरी मैक्स की वैल्यू क्या है 112 है। वेदर 65 इज ग्रेटर देन 112, नो, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो डोंट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो इसके आगे के अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो ये सभी वैल्यूज क्या है, these are the less than max. तो once the for loop is terminated, you will get the number max, and max की वैल्यू क्या है 112 है। This is regarding one dimensional array. Now two dimensional array, जैसे कि मैंने आपको कहा कि normally two dimensional arrays are used in matrix manipulation program, and in matrix manipulation program nested for loops are used. एक फॉर लूप में दूसरा फॉर लूप, 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 दीज फॉर लूप्स आर कॉल्ड एज नेस्टेड फॉर लूप्स, बिकॉज मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, बराबर है ना, 2 डायमेंशनल एरे 3x3 है, मीन्स मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ जे इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2। अगर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन के वक्त अच्छी तरह से ध्यान दिया होगा तो दिस इज 0 0 0 1 0 2, कौन सी वैल्यू कॉमन है, पहली वैल्यू कॉमन है, दूसरी वैल्यू 0 से लेके 2 तक जा रही है। दूसरे इसमें भी देखो 1 0 1 1 1 2, यहाँ पे भी पहली वैल्यू कॉमन है, दूसरी वैल्यू 0 से लेके 2 तक जा रही है। मीन्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ j इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2। आई और j के हर एक, i के हर एक वैल्यू के लिए j की वैल्यू 0 से लेके 2 तक जाएगी। तो पहले ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा 9 टाइम्स। वाई, बिकॉज 0 से लेके 2 तक ये, इसके 0 के लिए 0 से लेके 2 तक, इसके 1 के लिए 0 से लेके 2 तक, और इसके 2 के लिए 0 से लेके 2 तक। मीन्स मैं कौन से वैल्यूज रीड कर रहा हूं 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। वैल्यूज कौन से दिए हैं मैंने 9, ये दिए। अब ये पहला हो गया, दूसरा मैट्रिक्स भी लेना है हमें। तो दूसरा मैट्रिक्स क्या है, जस्ट एज्यूम दैट, ये आपको समझने के लिए लिया है मैंने, आप यहाँ पे कौन से भी वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन दूसरा मैट्रिक्स मैंने क्या लिया है 1 1 1 1 1 1 1, मीन्स एड 1 इंटू ईच एलिमेंट ऑफ ए। अब तीसरे नेस्टेड फॉर लूप में मैंने क्या लिखा है, सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे। एडिशन उसी तरह से होता है मैट्रिक्स का, खाली मल्टीप्लीकेशन अलग है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ए ऑफ 0 0 में बी ऑफ 0 0 ऐड कर दीजिए और वैल्यू कहाँ पे स्टोर कर दीजिए सी ऑफ 0 0, and this for loop is used to display the matrix।
सो अगर आपने यहाँ पे देखा, ये मेरा पहला मैट्रिक्स है, दिस इज माय सेकंड मैट्रिक्स, और प्रिंट करते वक्त मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट किए है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप तो फॉर लूप का ये ब्लॉक है, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा फॉर लूप है। तो ये अंदर का फॉर लूप क्या करेगा, 3 वैल्यूज प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने लिखा है स्लैश एन मीन्स गो टुवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन और योर कर्सर विल बी डिस्प्लेड ऑन सेपरेट लाइन। So this is all regarding one dimensional and two dimensional arrays which are used in C++. Now we will check whether it is possible to write direct programs in C. देखेंगे हम एक ही मिनट। Now we will see the actual C programs. तो यही जो हमने अभी लिया है उसके सी प्रोग्राम्स देखने का प्रयास करेंगे हम। तो आई थिंक ये सबको विजिबल हो गया होगा। अब हम प्रोग्राम लिखेंगे पहले टू फाइंड द मैक्सिमम अमॉन्ग गिवन 10 नंबर्स और दूसरा फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो पहला प्रोग्राम मैं लिखता हूँ maxarr.cpp नाम से। प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट among given 10 वैल्यूज। डायरेक्ट प्रोग्राम ही शुरू करता हूं मैं। हैश इंक्लूड iostream डॉट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस प्रोग्राम। सो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, देन हैश इंक्लूड conaio डॉट एच, void main integer a of 10, a of 10 comma I comma max, clr scr cout। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर सीन के पहले एक cout लिखना जरूरी है। एंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एरे फॉर I is equal to 0, I is less than or equal to 9, I plus plus, scene a of I, max is equal to a of 0 for I is equal to 1 now, क्योंकि पहला एलिमेंट वहाँ पे गया। for I is equal to 1, I is less than or equal to 9, I plus plus, if a of I मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो एलिमेंट अगर मैक्स से ज़्यादा है तो मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई, अगर नहीं है तो ये नहीं होगा। सी आउट, यहाँ पे मैं एक स्लैशन लेता हूँ, लार्जेस्ट वैल्यू इज max, get ch and our program ends।
First of all, save the program and then compile it. Execute. Enter 10 elements of array. समझो मैंने ये एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now which one is largest? 444 is the largest. तो वही मेरा रिजल्ट आना चाहिए. So yes, largest value is 444. तो हमने जो प्रोग्राम अभी देखा था वो प्रोग्राम करेक्ट है. अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं. मैट एड 1 नाम देता हूं. मैट एड मीन्स मैट्रिक्स एडिशन. इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. Program to add two 3x3 matrix. इनको मैं डिलीट कर देता हूं और मुझे मैट्रिक्स कैसे चाहिए. तो पहला मैट्रिक्स 3x3, दूसरा मैट्रिक्स 3x3 और तीसरा मैट्रिक्स भी 3x3. ये 3 मैट्रिक्स हो गए. आई और जे ये किस लिए? क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है. सो एंटर 9 एलिमेंट्स. तो पहले कौन से एलिमेंट लेना है हमें? पहले मैट्रिक्स के. सो एंटर 9 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स. पहले मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट पहले दे दो. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन और इक्वल टू 2 सेमीकोलन आई प्लस प्लस. थोड़ा आगे लिखने का बिकॉज दीज आर द नेस्टेड फॉर लूप्स. और हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं लिए है. क्यों नहीं लिए है? बिकॉज देर इज ओनली वन स्टेटमेंट विच इज डिपेंडिंग ऑन फॉर लूप. एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है और उस फॉर के अंदर खाली सी इन है. इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेने की जरूरत नहीं है. अगर लिए तो भी चलेगा. पहले फॉर के बाद दूसरे फॉर के बाद कर्ली ब्रेस ओपन कर लो, लेकिन अकॉर्डिंगली यू हैव टू क्लोज द कर्ली ब्रेसेस. सो फॉर j is equal to 0, j is less than or equal to 2, j plus plus. Cin a of I j. इसी को मैं कॉपी करता हूँ. कॉपी अगर करना है आपको तो सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ, कॉपी करो, फिर एडिट में जाओ, पेस्ट करो. ठीक है. और यहाँ पे भी मुझे ये चाहिए सी आउट, क्योंकि आप पहले तो हमने पहले मैट्रिक्स का ले लिया, अब हम दूसरे मैट्रिक्स का ले लेंगे. कॉपी किया मैंने, होम पे गया और यहाँ पे फिर पेस्ट कर दिया. सो एंटर 9 एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ए मुझे बी लेना पड़ेगा. अब हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों प्रिंट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. थोड़ा बड़ा होगा प्रोग्राम बट इट इज़ बेटर, क्योंकि जैसे ही आप मैट्रिक्स प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि वेदर एडिशन हो गई है या नहीं हुई है. क्योंकि हम जब 9 एलिमेंट देंगे तो हॉरिजॉन्टली देंगे, अकॉर्डिंगली वो स्टोर होगा एरे में. तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ सी आउट /n, या पहले इनके एडिशन कर लेंगे. सो यही फॉर लूप है दोनों. इन्हीं फॉर लूप को हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे. ये क्या हो गया? मैट्रिक्स के एडिशन हो गई. अब मैं लिखता हूँ सी आउट /n
sorry, /n, your first matrix elements are अब मुझे प्रिंट करना है। फॉर लूप तो यही लगने वाले हैं हर जगह पे, अल्ट्रा एडिट कॉपी, अल्ट्रा एडिट पेस्ट, और i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। खाली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करली ब्रेस ओपन कर लूँगा सो दैट यू विल गेट द आइडिया। फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन टू j प्लस प्लस, इंस्टेड ऑफ सी इन यहाँ पे लिखूँगा मैं सी आउट, a ऑफ i j, और उसके बाद लिखूंगा दूंगा मैं दो स्पेस किस लिए कि दो एलिमेंट में आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस चाहिए, तो दो बार मैंने स्पेस दे दिया। अब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इनर फॉर लूप यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट /n, ये हो गया मेरा पहला मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। अब इसी को कॉपी करना है, एडिट कॉपी, एडिट पेस्ट, और यहाँ पे खाली यूर फर्स्ट मैट्रिक्स की जगह सेकंड मैट्रिक्स एलिमेंट्स, और यहाँ पे ए की जगह मुझे क्या लेना है, बी ऑफ i j, दूसरा भी मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। अब मुझे तीसरा मैट्रिक्स ही प्रिंट करना है C, तो इसको फिर मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे नाउ यूर सेकंड मैट्रिक्स, यूर थर्ड मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर, रिजल्टेंट मीन्स व्हाट, आफ्टर एडिंग मैट्रिक्स A एंड B जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है, गेट ch एंड नाउ माय प्रोग्राम इज क्लोज्ड। तो थोड़ा बड़ा हो गया है प्रोग्राम, लगभग 45 लाइन्स का, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक ही चीज़ डबल है। फॉर लूप 2 बार कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार, 7 बार रादर, 7 टाइम्स यू हैव रिटन नेस्टेड फॉर लूप्स फॉर मैट्रिक्स एडिशन प्रोग्राम। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। नाउ कंपाइल द प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेड, एंटर 9 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो मैं अब जो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिया था वही एलिमेंट दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स। अब सेकंड मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 1, रिजल्टेंट मैट्रिक्स मीन्स वाज इनकी एडिशन, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, इस तरह से। यहाँ पे एक ही लेना कोई ज़रूरत नहीं है, आप कौन से भी वैल्यूज दे दो, इंटीजर वैल्यूज, इट विल ऐड द थिंग्स। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, सो योर फर्स्ट मैट्रिक्स इज मीन्स मैंने देते वक्त तो इस तरह से दिए हैं हॉरिजॉन्टली, लेकिन मैट्रिक्स में आने के लिए मैंने ये इस तरह से लिखा है। सो योर फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, your second matrix is 1 1 1 1 1 1 1 1 1, and resultant matrix means when you add these first two matrix, your resultant matrix is 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो जो दो स्पेस मैंने दिए थे that is nothing but spaces between the numbers in the matrix. So like this you can write matrix addition or matrix subtraction program. So thank you very much for watching this video. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you very much.